Good afternoon to all of you. Today again we are going to revise the same topic which we have previously revised, and we have learned one by one the important features of this same chapter, manufacturing industries. Yesterday we have defined manufacturing, we understood the meaning of the word manufacturing, and also we learned the importance of manufacturing. And today, in continuation to the same topic, we will just learn that agriculture and industries are not exclusive of each other. These are the two sectors. One is primary sector, another one is secondary sector. And agriculture and industry are not exclusive of each other. इसका मतलब ये है कि किसी देश में अगर केवल एग्रीकल्चर है तो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि वो उस देश का सारा डेवलपमेंट जो है कर लेगा। अगर किसी कंट्री में केवल इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर नहीं है तो भी वो सेल्फ सफिशिएंट और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 100% वो कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री both support each other, and these two sectors are responsible for the economic development. So we have written one sentence: agriculture and industry are not exclusive of each other. In fact, they support, they complement each other. एक दूसरे के प्रतिपूरक है। वो कैसे? एक एग्जाम्पल है कि there are some industries which need raw material from agriculture. अगर तुम्हारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो तुमको कॉटन का इंतजार करना होगा, वो कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर देंगे. If you have a sugar mill, then you have to wait for the sugar cane to arrive, and then only your industry, your sugar mill will function. Likewise, rubber industries, they are jute industries, they are all agro-based industries depend upon the raw materials from the agriculture sector. So industry agriculture पर dependent हो गए. How agriculture is dependent on industry? The agriculture sector needs tractor, it needs pump set, it needs PVC pipes, it needs motor, machines, tools, implements. So all these are industrial products. Agriculture में हमको fertilizer चाहिए, pesticide चाहिए, हमको insecticide चाहिए. All right, tools, implements. So all these things are provided by industry, and because of which the farmers are able to produce and they are able to do the farming. उनको प्लाव चाहिए, उनको जो है स्पेड चाहिए, उनको अलग अलग जो एग्रीकल्चरल जो भी टूल्स इंप्लीमेंट्स है वो चाहिए. So agro based industries, the industries supply some machines, tools, products for the agriculture sector. So agriculture and industry are not exclusive of each other, and in fact they depend upon each other and they contribute to the overall development of the economy. Next, development and competitiveness of industry not only help farmers to grow more food, but also make their production process efficient. If there is industrial development, if there is better tractor, if there is better harvester, if there is better combine, if there are better motors, better pump set, then we can expect the reflection coming from the agriculture sector also. If industrial activity is good, if the tools, implements, motors, machines are manufactured by the industry are of good quality, then definitely it will help the farmers, and their farmers are able to produce their food grains to higher amount and of better quantity and quality, and also the production process becomes more efficient for the industry also. Industry को भी जो है एक सपोर्ट मिल जाता है कि उनके सामान जो है हाथों हाथ बिक जाते हैं, जो फार्मर्स है वो डिमांड क्रिएट करते हैं, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक है, both complement each other. So I hope you can understand this part with
says that agriculture and industry are not exclusive, rather they go hand in hand. Agriculture and industry work together, they very much complement each other. Recording in progress. Next subtopic is industrial location. So where an industry is expected to start, it depends upon some factor. For example, we need land, but the price of land is if too high, then we have to think whether we should start the industry or not with such high investment for the price of land. Likewise, there are other factors like labor, power, and raw materials. So location of industries are already very complex in nature, and they depend upon some factors, or they are influenced by some factors like availability of raw material, labor, power, capital, market, etc. And it is highly unlikely at present that all these factors are available at one place. So rarely all factors are available at one place. So consequently, the manufacturing industries have to locate the industry in such area where some of them are available and some of them can be created. So we identify these factors as some natural factors or physical factors, like raw material is natural, labor is natural, but the skill and education of the labor is man-made. People are born by nature. Suppose availability of the labor is both a natural factor, and the talent, the education, the training, the skill of the labor is a man-made factor. Next, capital is man-made factor. Power is both natural and man-made. Electricity is available from natural sources like coal or hydroelectricity or nuclear energy. All these are parts of nature. But it is human beings who are actually generating the electricity and bringing it to the required industrial system. Then market is again a man-made factor. So market is a place where large-scale buying and selling is done. And market is also the concept where people will immediately understand that this is the place where exchange of goods and services can be done easily. All right, so these are some of the natural and man-made factors. If they are not available, then they can be arranged at lower cost, and the industry should locate itself in such areas where we can arrange, where we can at least manage the factors of production. So here is one schematic diagram which explains the ideal location of an industry. There are 4 boxes. This is number 1, this is number 2, this is number 3, and this is number 4. The first box indicates the cost of obtaining the raw materials at site. Whichever is your industry and it needs the raw material, accordingly the cost of bringing the raw material to the site is to be calculated or estimated. तो यहाँ हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये मेरा पहला कंसीडरेशन है. सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो मेरा फैक्ट्री है वहाँ रॉ मटेरियल पहुंच गए हैं, लेबर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, और टोटल प्रोडक्शन में जो भी उस समय खर्चे आ रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, दैट इज टू बी आल्सो एस्टिमेटेड. Third box is production is complete. Now we need to distribute the final product. अब हमको finished goods को market तक भेजने हैं. So cost of distribution. नजदीक में market है तो खर्चा कम आएगा. If the products are to be sent to far off place or distant places, then the cost of transportation will increase, and hence the cost of distribution price will also increase. So 3 boxes we have considered: raw material, production cost, distribution cost. यहाँ तक मेरा खर्चा हो रहा है. Now I have to decide whether I will choose here
to locate my industry, then these two factor will become higher. ये दोनों पर खर्चा बढ़ जाएगा अगर हम यहाँ इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं। यहाँ लोकेट करेंगे तो इसका खर्चा कम हो जाएगा, ये दो खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ लोकेट करते हैं तो ये दो का खर्चा बढ़ जाएगा, इसका खर्चा घट जाएगा। All right, likewise, if we decide to choose the industry at this place, then we have to pay more for bringing the raw material and distribute the finished goods. So where we will locate the industry, or which can be considered as the least cost, it is this place. It means I have to bring this, I have to bring this, I have to bring these three boxes. Three boxes are close to each other, and my decision to locate the factory will be this place. I will bring the raw material, I will manage the production, I will manage the distribution, and I got a central place for that. So theory says that this is the ideal location, or this is the least cost theory of location of industry. Is it clear? Now we will get some more perspective related to industries. One such perspective is that after an area goes for industrialization, urbanization follows in that area. This is one perspective. Another perspective is that sometimes industrialization and urbanization go together, or they go hand in hand. These two sentences means that the industries are at first they need to be constructed. कहीं पे भी किसी जगह में इंडस्ट्री को तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, यानी एक जगह में एक साइट में जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फैक्ट्री के लिए मशीन आ जाते हैं, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ऑफिसेस है, स्पेस है, वो पहले डिजाइन हो जाते हैं, प्लान हो जाते हैं। तो इसको बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन जरूरी है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब जो है इंडस्ट्रीज जैसे चलने लगे हैं, प्रॉफिट होने लगा, उस जगह में लोगों का जरूरत बढ़ने लगा है, तो वहां पे अर्बनाइजेशन भी होने लगता है, यानी शहरीकरण, यानी जमीन बिकने लगते हैं, दुकान खुलने लगता है, इंडस्ट्री का सामान वहां पहुंचता है, इंडस्ट्री को जरूरत का सामान खरीदने बेचने का काम कारोबार शुरू हो जाते हैं, लोग जमीन लेके घर बनाने लगते हैं, स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस सब कुछ वहां धीरे 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 वहां पे बनने लगते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया को धीरे 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 एक अर्बन आउटलुक मिलने लगता है, और ये है पहला पर्सपेक्टिव, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस। और दूसरा पर्सपेक्टिव है समटाइम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दे गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब साइमल्टेनियसली दे कंप्लीमेंट ईच अदर। There is industrial progress, there is urban progress also. तो जहां तुमको एक इंडस्ट्री सेटअप करना है, क्या सीमेंट चाहिए? इंडस्ट्री बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। तो इंडस्ट्री जो सीमेंट खरीदते हैं, इंडस्ट्री जो सीमेंट खरीदते हैं, अगर लोग भी जमीन खरीद के घर बनाने लगे तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा। आंसर इज वेरी गुड। तो सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट में ही आएंगे सीमेंट, यानी ट्रक में हमको सीमेंट लाना है, ट्रक में सीमेंट आएंगे तो उसके लिए हमको सीमेंट का स्टोरेज गोदाम चाहिए, लेबर चाहिए जो बोरा को ले जाके घर तक पहुंचाएंगे या इंडस्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो लेबर को काम मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को काम मिल जा रहा है। घर बनने लगा तो उसमें कारपेंटर चाहिए, उसमें प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वेल्डर चाहिए, फिटर चाहिए। बहुत सारे लोग जो है घर बनाने के काम में जुड़ जाते हैं। एक तरफ इंडस्ट्री बनने लगा, एक तरफ घर बनने लगा। रोड भी चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल आएंगे, फिनिश्ड गुड्स आएंगे, लोगों का जरूरत का सामान आएगा। Isn't it?
और जब लोग रहने लगेंगे तो कम से कम ग्रीन वेजिटेबल्स का दुकान खुल जाएंगे, ग्रोसरी दुकान खुल जाएंगे, क्लॉथ के दुकान खुल जाएंगे। तो नेसेसरी जो है आइटम्स का एक एक करके वहां पे पहले 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 जमीन और दुकान स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह से एक जगह में इंडस्ट्री और अर्बन दोनों का ही डेवलपमेंट होता है, और वो जगह में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे जो है डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दे गो हैंड इन हैंड। इंडस्ट्री प्रोवाइड द necessary finished goods for the urban centers. Urban centers in return provide the industry with specialized services. अर्बन सेंटर कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री का सारा पैसा घर में रखना है कि बैंक में? इंडस्ट्री के जो करोड़ों रुपए प्रॉफिट आएंगे, इसको कहाँ, घर में रखोगे तिजोरी में या बैंक में रखोगे? सर बैंक में। सर बैंक में। हाँ, तो इसका मतलब बैंक, इंडस्ट्री के अंदर में बैंक खोलना है या इंडस्ट्री के बाहर कहीं बैंक रहेगा? सोचो, इंडस्ट्री के बाहर। इंडस्ट्री के अंदर मशीन है, इंडस्ट्री के अंदर रिस्क है, जोखिम है, इलेक्ट्रिसिटी है, बड़े बड़े मोटर, मशीन, लेबर है, उसके बीच में बैंक रखोगे या बैंक बाहर होगा? बाहर सर। अच्छा, बैंक बाहर है तो बैंक को सुरक्षा चाहिए। यस सर। बैंक को सेफ्टी, बैंक को सिक्योरिटी देना है कि नहीं? यस सर। तो एक सुनसान जगह में बैंक ज्यादा सेफ है, जहां कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है, एक घर नहीं है, एक दुकान नहीं है, वैसे आइसोलेटेड जगह बैंक है, या कोई क्राउडेड एरिया है जहां घर है, मार्केट है, लोग आते जाते रहते हैं, निगरानी में बैंक को रखते हैं? कौन सा ज्यादा सेफ है? एक बैंक अकेला है और दूर दूर तक 5, 10, 20 किलोमीटर तक कोई घर मकान नहीं है, कोई आदमी आता जाता नहीं है, वो ज्यादा सेफ है, या जहां थोड़ा भीड़ भाड़ है, रीजनेबल मूवमेंट है लोगों का? सर बैंक तो मार्केट में। कौन सा ज्यादा? गया मार्केट में बैंक है क्या? बैंक, एटीएम? यस सर। यस सर। वहां लोग आते जाते रहते हैं और वही अपने आप में सिक्योरिटी है। अब बैंक में अनपढ़ लोग ज्यादा जाते हैं या पढ़े लिखे लोग? बैंक में इलिटरेट लोग ज्यादा जाते हैं या लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग? सर लिटरेट। लिटरेट, पढ़े लिखे लोग बैंक में ज्यादा जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है शहर में रहते हैं, और बैंक को वही लोग के चलते बैंक खुले हैं और बैंक फंक्शन कर रहा है, बैंक चल रहा है, इससे इंडस्ट्री को भी एक बैंकिंग फैसिलिटी मिल गया है। Isn't it or not? तो इंडिया के जितने बड़े शहर है जहां इंडस्ट्री है, वहां बैंक है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है, एजुकेशन है, जिससे इंडस्ट्री को फर्दर लेबर मिल जाते हैं, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड लेबर उनको लोकल सिटी से, टाउन से मिल जाते हैं। उनको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको ऑपरेटर चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए। तो ये सब कुछ जो है एक अर्बन सेंटर से उनको नजदीक से मिल जाते हैं। तो 1947 में और 1950, 1960 में इंडिया में जब इंडस्ट्री बने होंगे, तो उस समय हमको स्किल्ड और ट्रेंड लेबर और हमको मार्केट, अर्बन सेंटर की कमी देखने को मिला था। लेकिन अभी 2022 है, आज हमको एजुकेशन के मामले में, आज हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। और आज के डेट में इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होता है तो उसको फैक्टर्स अरेंज करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उसके लिए फैक्टर है अपना खुद का कंपटीशन। उनका कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि उनके जैसे काम करने वाले इंडस्ट्री आज 50 है। आज हजारों इंडस्ट्री खुल चुके हैं जो एक दूसरे के कंपटीशन में एक दूसरे के लिए चैलेंज बन रहे हैं।
इज इट क्लियर? जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडस्ट्री नहीं थे, तो सरकार के लिए चुनौती था कि इंडस्ट्री को कैसे सक्सेसफुली रन करे। आज इंडस्ट्री सक्सेसफुल है, लेकिन आज के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चैलेंज है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करेंगे या प्रॉफिट को कैसे अर्न करेंगे। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, इंडस्ट्री अपना क्या करते हैं, काम बांट लेते हैं और वो शेयर करते हैं बेनिफिट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना लेबर एक्सचेंज करना, ये सारा चीज को जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं फ्रॉम द नियर बाय इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एग्लोमरेशन इकोनॉमी। इसको हम लोग बोल रहे हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी, जिसका मतलब है एक ग्रुप की तरह जो है काम करते हैं। इंडस्ट्री भी जो है उनको अकेले इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए नहीं सोचना है, वाटर सप्लाई, लेबर के लिए उनको आज ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। और एक जगह इंडस्ट्री स्टार्ट होता है तो अगल बगल में 2-3 इंडस्ट्री उस जगह में जो है प्लान कर लेते हैं कि हम भी अपना इंडस्ट्री नियर बाई लोकेट करेंगे। तो 3-4 इंडस्ट्री मिलके सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो अरेंज कर लेते हैं। अगर कोई अकेला इंडस्ट्री है तो उसको लेबर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ को उसको अकेले मैनेज करना होता है। लेकिन आज अगर 3-4 इंडस्ट्री एक जगह प्लान होते हैं एक साथ, तो वो जो है बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स दोनों को शेयर कर लेते हैं। एंड दिस इज नोन एज एग्लोमरेशन, दिस इज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। यस सर। Yes, sir. So agglomeration economy means a group is there which share the profit and loss, who share the benefits of electricity and infrastructure, water supply, sanitation, plantation, ये बहुत सारा काम शेयर कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आज के डेट में एक मान लो पार्टनरशिप से अगर काम होता है तो उससे बेनिफिट ही होते हैं। और क्रिकेट में भी हम लोग ऐसा कुछ देखे हैं, बैट्समैन जब चौका मारने के लिए बॉल को हिट करता है और बॉल बाउंड्री लाइन तक जब जो है बॉल मूव करती है, तो 2-2 फील्डर एक साथ तेजी से भागते हैं, एक बॉल को रोकता है, दूसरा उठा के थ्रो करता है। और कभी कभी ऐसे पार्टनरशिप्स में हम लोग कैच भी लेते हुए देखे हैं। बाउंड्री लाइन में बॉल 6 होने वाला था, एक जन जंप करके बॉल को अंदर में फेंक दिया, दूसरा पार्टनर वहीं पे था, वो भी भाग के आया था, तो वो कैच ले लेता है। और ऐसे कभी चौके भी बचाते हुए देखे हैं हम लोग। और कभी कभी बॉल जो भी थ्रो होता है विकेट कीपर के एंड में या बॉलर एंड में, तो 1-2 और फील्डर कवर करते हैं कि एक से छूटे तो अगला उसको ये कर दे। ऐसे ही पार्टनरशिप्स को हम लोग बोल रहे हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एरिया में पेट्रोल पंप है, गाड़ी में रोज सभी लोग अपना अपना पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल पंप का भी बिक्री हो रहा है। वहीं गैरेज है तो टायर में हवा भरवाने का काम हो जाता है। वहीं माइनर रिपेयर, ब्रेक का और थोड़ा एयर फिल्टर सफाई का काम हो जाता है। कहीं गैरेज है तो वहां स्पेयर पार्ट मिल जा रहा है गाड़ी के लिए। और इस तरह से जो है एक साथ 4-5 लोगों को नौकरी मिल जा रहा है। गैरेज वाले को भी नौकरी मिल जा रहा है, जो हवा भरता है टायर में और पंचर बनाता है उसको भी कुछ जॉब मिल जाते हैं। और जो लोग पेट्रोल बेच रहे हैं वहां पे वो क्लीनर लेके भी खड़ा रहता है, शायद एक आध क्लीनर या एक आध 2T या 4T इंजन ऑयल बिक जाए। तो ये सब एग्लोमरेशन इकोनॉमी का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे लोग एक इंडस्ट्रियल या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना स्कोप ढूंढते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऑटो वाला अपने ऑटो में 2 पैसेंजर बैठा के अगर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एक दूसरे ऑटो वाला में 3 सवारी है, तो ये अपने 2 सवारी को उतार के अगले वाले जिसमें 3 बैठे हुए तो उसमें बैठने के लिए बोल देते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं। ये रुक गया, अगला में 3 के जगह 5 सवारी हो गया, वो 5 को लेके गया, उसको प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। ये रुक जाता है, ये अभी वेट करता है 5 सवारी के लिए। इससे क्या हो रहा है, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया, अपने लॉस को मैनेज करने के लिए ये लोग आइडिया निकाल लिए हैं। और यही है एक एग्लोमरेशन का एक इंडिकेशन है, जहां ग्रुप
जो है सक्सेसफुल है और इंडिविजुअल को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। अब बताओ बच्चे लोग ग्रुप स्टडी करते हो क्या? ऐसे कितने बच्चे हो जो ग्रुप स्टडी करते हो? एक चैप्टर फिजिक्स का कोई बना लिया, एक कोई केमिस्ट्री का बना लिया, कोई एक मैथ्स का बना लिया और आपस में एक्सचेंज कर लेते हो। ऐसे कोई बच्चे हैं जो ट्यूशन में एक टीचर के पास चले गए और दूसरे बच्चे दूसरे ट्यूशन में टीचर के पास गए और बाद में एक्सचेंज कर लेते हैं नोट्स? ऐसा कर सकते हो क्या? क्या तुम पार्टनरशिप Yes, क्रिएट sir. कर सकते हो? यस सर। कोई आकाश इंस्टीट्यूट में चला गया, कोई नारायणा में चला गया, कोई मान लो दूसरे कोई कोचिंग हाउस में चला गया और आपस में मिल के अगर पढ़ेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे तो हमको 3-3 कोचिंग सेंटर का हमको वहां पे स्टडी मटेरियल मिल सकता है। और ये एक एग्लोमरेशन इकोनॉमी में तुम स्कूल लाइफ में भी प्रॉफिट कर सकते हो अपना इसी तरह से। तो इंडस्ट्री भी इसी तरह प्लान करते हैं अपना। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो आज हम लोग जो है इतना ही आज डिस्कस करेंगे। कल जो है फिर हम लोग इसी चैप्टर का कुछ अगर बच गया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।